So now that we have discussed and understood everything about deferred tax liability, and in this case, the deferred tax liability in year one was 40,000, year two was 40,000, and year three was then zero. We will calculate the same number using a different approach and a different method. Meaning, observe. Can I say we calculated deferred tax liability of 40,000 looking at the income statement numbers, whether it is annual report act or tax return, right? Yes, sir. हाँ. Now we will calculate the same deferred tax number of 40,000, but not looking at income statement number, but looking at balance sheet numbers. Okay? Yes. Why? I mean, first of all, what I'm claiming over here is कि तुम बैलेंस शीट के नंबर्स देखोगे ना, एनुअल रिपोर्ट और टैक्स रिटर्न के, तो भी तुमको डेफर टैक्स लायबिलिटी 40,000 का ही आएगा. आई एम क्लेमिंग दैट. क्वेश्चन इज ये कैसे पॉसिबल है? बहुत ऑब्वियस है ना. अगर डेप्रिसिएशन के वजह से तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट का नंबर बदल गया तो कहने से डेप्रिसिएशन तो बैलेंस शीट में भी तो आता है. मालूम है ना, ग्रॉस एसेट माइनस डेप्रिसिएशन नेट एसेट्स. Yes. Yeah. तो कहने से अगर डेप्रिसिएशन का 1 लाख का फर्क एनुअल रिपोर्ट और टैक्स रिटर्न के इनकम स्टेटमेंट में है, तो कहने से डेप्रिसिएशन की वजह से 1 लाख का फर्क टैक्स रिटर्न का बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट के बैलेंस शीट में भी होगा. और अगर वो है तो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, DTL बराबर. Yes, sir. बट बिफोर दैट, टैक्स बेस एंड कैरिंग वैल्यू, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू. टैक्स बेस मतलब बैलेंस शीट में उस एसेट या लायबिलिटी का नंबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी. सो व्हेन आई से टैक्स बेस ऑफ एसेट, मीनिंग बैलेंस शीट में उस एसेट का वैल्यू क्या है. व्हेन आई से टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी, मीनिंग बैलेंस शीट में उस लायबिलिटी का वैल्यू क्या है. एंड कैरिंग वैल्यू मीन्स एनुअल रिपोर्ट. दिस इज tax return and this is annual report, balance sheet numbers. Are you getting it, all of you? Yes, sir. So can I say on day 0, when you have purchased the asset, on day 0 when you purchase the asset, can I say the tax base of the asset is going to be 6 lakhs, and can I say the carrying value of the asset is also going to be 6 lakhs on day 0? दोनों का स्टार्टिंग वाले तो सेम ही होगा ना. वापस बोल देता हूँ, टैक्स बेस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिटर्न and the balance sheet in tax return. And when I say carrying value, on the left side I am writing we are talking about annual report का जो बैलेंस शीट है उसकी बात हो रही है, बराबर. सो नाउ हियर्स द थिंग, एट द एंड of year 1, can I say the depreciation as per WDV in tax base is 3 lakhs, and can I say the value at the end of year 1 will be 3 lakhs, and depreciation as per annual report SLM is 2 lakhs. So can I say the value at the end of year 1 will be 4 lakhs? And guess what? Because the depreciation difference is 1 lakh, can I say the balance sheet numbers will also be different by 1 lakh? Barabar? हाँ. So can I not take this difference of 4 lakh minus 3 lakh and I multiply with the tax rate of 40%? Can I say 40,000 will be my DTL? Barabar? Yes. Actually I should stick to the same colors. Wait a minute. क्या colors थे? Black, green and red. Just give me a moment. हाँ ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको समझ में आ जाएगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ ईयर 2. एंड कैन आई से इन ईयर 1 अगेन in year 2, मतलब between end of year 1 and end of year 2, this is during year 2, can I say you will charge another depreciation of 2 lakhs, and over here also 2 lakhs, because in year 2 the depreciation is 2 lakh. Can I say end of year 2 this will be a depreciation, and I can take this difference of 1 lakh, which is 2 lakh minus 1 lakh, and I multiply with the tax rate of 40%. Can I say your DTL will be 40,000, right? Yes. Yes, एक sir. मिनट,
एम आई मिसिंग समथिंग? वेट अ मिनट, सेकेंड ईयर में DTL 40,000 कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो जीरो था ना, देखना ये। Closing balance. वो क्लोजिंग बैलेंस था। हाँ, क्या बात है, दिमाग चल रहा है बंदा का। कैन आई से, अगर तुम क्लोजिंग बैलेंस एसेट का देख के कैलकुलेट कर रहे हो तो कैन आई से व्हाट यू विल गेट इज योर क्लोजिंग DTL। इनफैक्ट गौर करो, तुम्हारा ओपनिंग DTL 0 था प्लस 40,000, योर क्लोजिंग DTL is also 40,000. And guess what? The fact at the end of year 2, your closing DTL is still 40,000. Can I say the DTL during the year is 0? Which is confirming with our earlier calculation. बराबर है? All of you? यस सर। And finally, can I say in year 3, you will charge depreciation of 1 lakh, and can I say the value is 0, meaning at the end of year 3, the difference is 0, multiply by 40%, can I say your closing DTL will be 0? That means you must have paid 40,000 of DTL in year 3. हाँ Barabar? Clear about this, all of you? यस सर। So then can I conclude, guys? And this conclusion is super duper trooper important. Purple color. Can I say when your carrying value of asset is greater than the tax base of asset, that leads to DTL? अच्छा, तुम लोग को यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, तुम अभी हाँ बोल दोगे शायद, क्योंकि लिए सेम एग्जाम्पल है, एवरीथिंग इज सेम, सो यू वुड अग्री विथ मी, बट यू आर मोर कंफर्टेबल। कैन आई से व्हेन आई गिव यू दैट इनकम स्टेटमेंट का एंगल, कि मैं बोलता हूँ यू स्टेप इनटू द शो ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड देन स्टार्ट थिंकिंग, कैन आई से दैट इज अ लिटिल बिट मोर रिलेटेबल फॉर यू? हाँ Yes. बराबर ना? मैं बोलूँ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट DTL, तुम अभी हाँ बोल दोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, राइट? तो रिलेट करना बहुत जरूरी है, एंड आई एम हेल्पिंग यू डू दैट। सी हाउ? Because you want this urge of relating to it, think about it. If this is your annual report and this is your tax return ka hand, think about it. Your carrying value of asset is more than the tax return of asset, the tax base of asset. तो can I say तुम्हारा टैक्स रिटर्न में डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया रहेगा करके एसेट का वैल्यू कम है ना? क्या बोलते हो? हाँ हाँ. अगर तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट का कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर देन द टैक्स बेस ऑफ एसेट, कैन आई से टैक्स रिटर्न में ज्यादा डेप्रिसिएशन लग गया रहेगा एनुअल रिपोर्ट के कंपैरिजन में यस ईयर सर। 1 में? Yes. तो ये चीज को पकड़ो और इनकम स्टेटमेंट की तरफ आओ। तो कैन आई से डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिटर्न इज मोर देन द डेप्रिसिएशन एज पर एनुअल रिपोर्ट? हाँ? हाँ Yes. तो भाई टैक्स रिटर्न का खर्चा ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट कम होगा ना? कैन आई से प्री टैक्स इनकम PBT एज पर एनुअल रिपोर्ट इज ग्रेटर देन द PBT एज पर टैक्स रिटर्न, and can I say because of that the tax as per annual report is more than the tax as per tax return, and annual report makes an argument कि यार मुझे तो ज़्यादा देना था लेकिन मैंने कम दिया, आगे जाके उल्टा हो जाएगा DTL, समझा? तो मैंने Yes, बैलेंस शीट का कनेक्ट इनकम स्टेटमेंट में लाया और वहाँ से DTL को डिसाइड किया। मतलब एग्जाम में तुमको कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस दिया है और तुमको पूछा है DTL है कि DTA, तो तुम इस तरह से सोच सकते हो। आर यू गेटिंग इट? आई हैव गिवन यू द थ्रेड ऑफ थॉट टू हैव। दूसरा तरीका है रट्टा मारना, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर है? यस सर। तो ये जो मैं तुमको समझाया ना पूरा कनेक्ट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे, सबसे नीचे। ओके, लोअर टैक्स बेस ऑफ एसेट मीन्स हायर चार्ज ऑन एसेट रिजल्टिंग इन लोअर टैक्सेबल इनकम, बराबर ना? ज़्यादा खर्चा तो ज़्यादा कम टैक्सेबल इनकम, एंड हेंस लेसर टैक्स पेबल। ये सारे मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जो बुक में लिखा हुआ है। एंड इफ द टैक्स पेबल इज लेसर एज कम्पेयर टू इनकम एज कम्पेयर टू एनुअल रिपोर्ट, कैन आई से इट विल बी DTL, बराबर है? यस सर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको रियलाइज करवाना चाहता हूँ। ये कैन आई से अगर मैं बैलेंस शीट का नंबर देख के DTL है या DTA है निकालूंगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट, तो कैन आई से मुझे क्लोजिंग नंबर मिलेगा?
हाँ क्लोजिंग बैलेंस। पर अगर मैं Yes. इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स देख के निकालूंगा तो कहने से मुझे उस साल का डिटेल कितना हुआ है या गिरा है वो पता चलेगा। कैन आई से व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज इज, कौन सा कलर, पर्पल कलर, लुक एट द टाइमलाइन अबव। ये जो नंबर्स है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, कैन आई से ये नंबर्स मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नंबर्स देख के पता चलेगा, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर 12 मंथ पीरियड ना। हाँ Yes. एंड कैन आई से डिफरेंट ब्लू कलर, ये वाला जो है क्लोजिंग डिटेल, वो मैं नंबर्स बैलेंस शीट देख के निकाल सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? हाँ yes आर यू Yes. थरो विद दिस? हाँ Yes. बट देन यू शुड हैव अ क्वेश्चन कि यार तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो अमाउंट है तुमने इनकम स्टेटमेंट नंबर को देख के भी निकाला और बैलेंस शीट के नंबर को भी देख के निकाला, तो हम कौन सा वाला अप्रोच यूज करें? बराबर ना। और बाय द वे तुमने दूसरा तरीका बताया क्यों? व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दैट? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको क्वेश्चन में क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी हिसाब से तुम निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स दिए तो तुमको पता चल जाएगा डीटीएल फॉर दैट पीरियड, डीटीएल या डीटीए। और अगर बैलेंस शीट का नंबर दिया तो तुमको पता चल जाएगा डीटीएल एंड डीटीए एट द एंड ऑफ दैट ईयर। आर यू गेटिंग इट? तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, यूज द अप्रोच विच यू थिंक फिट। क्लियर है? yes Yes. sir But practically speaking, why do you need to know all these approaches? Here's the explanation for that. And stay tuned because this is the last thing which I'm going to explain you in this example. You see, I told you there are thousands of reasons. क्या बोला था? Reasons. Because of which there are thousands of reasons because of which there are temporary differences in tax amount. Temporary differences. बराबर है? And only when the difference is reversed because of that particular reason, we say that DTL or DTA is reversed. मतलब एक ही साल में बहुत सारे वजह होंगे जिसके वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होगा और डेफर्ड टैक्स एसेट भी होगा, और वो वजह जो रीजंस है वो कंपनी के फाइनेंशियल फुटनोट्स में रहेगा। ये एप्पल जो है उसका एनुअल रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से उसको डीटीए हुआ, उसको डीटीए हुआ, अपने एग्जाम्पल में डीटीएल का बात हुआ था। थिंक अबाउट इट। अगर ये एग्जाम्पल का जो बात कर रहा था मैं अभी तुमको समझा रहा था, उसमें टैक्स रिटर्न में तुम्हारा डब्ल्यूडीवी था और एनुअल रिपोर्ट में एसएलएम था। बराबर? अगर यहाँ पे एसएलएम होता और यहाँ पे डब्ल्यूडीवी होता, यहाँ पे डीटीएल आया, तो कहने से यहाँ पे डीटीए आ जाता। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम मेकिंग यू रियलाइज इज, मैंने तुमको याद है एग्जांपल में बोला था सबसे पहला चीज, योर एबिटडा इज 5 लाख, सेम फॉर ऑल द 3 years अक्रॉस टैक्स रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट। मैंने स्टेटमेंट क्यों मारा था? मैंने तुमको ये इसके लिए स्टेटमेंट बोला था क्योंकि यार देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस अकरिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर बिकॉज ऑफ विच द डिफरेंसेस विल बी देयर। मैंने वो एग्जांपल में अज्यूम कर दिया कि भाई खाली डेप्रिसिएशन ही है जिसकी वजह से पीबीटी अलग है, ताकि तुमको कौन सा वजह से समझा सको। पर प्रैक्टिकली कहना है से देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस इन अ ईयर बिकॉज ऑफ विच द डिफरेंसेस विल बी देयर एंड दैट कुड लीड टू डीटीएल एंड डीटीए। yes sir तो क्या तुम 1000 बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे क्या कि भाई डेप्रिसिएशन की वजह से डीटीएल है कि नहीं, देखते हैं, लेट्स अज्यूम एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। फिर तुम बोलोगे अच्छा इंपेयरमेंट की वजह से डीटीएल है कि डीटीए, लेट्स अज्यूम एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। मतलब अगर 1000 रीजंस है तो क्या तुम 1000 बार पीएनएल बनाओगे प्रैक्टिकली नहीं जस्ट टू फाइंड आउट डीटीएल डीटीए? नहीं नहीं ना। तो प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टाफ या जो एनुअल रिपोर्ट बनाता है वो बैलेंस शीट का नंबर देख लेता है कि भाई कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस में फर्क है क्या, तो पता चल जाएगा ओपनिंग बैलेंस क्या और क्लोजिंग बैलेंस क्या, एंड डिफरेंस इज डीटीएल डीटीए ऑफ द ईयर। तो बैलेंस शीट का मेथड जो है ना, अप्रोच डीटीएल और डीटीए कैलकुलेट करने का यहाँ पे काम आ जाता है, क्योंकि एक बार बैलेंस शीट बन गया दोनों का, फिर तुमको खाली दोनों का नंबर कंपेयर करने का बस। चाहे वो तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो दोनों का नंबर कंपेयर कर लो, अकाउंट रिसीवेबल है तो दोनों का नंबर कंपेयर कर लो, इन्वेंट्री है तो दोनों का नंबर कंपेयर कर लो, और उसमें से पता चल जाएगा कि कौन से रीजन की वजह से डीटीएल है और कौन से रीजन की वजह से डीटीए है। दैट इज द रीजन बॉय। वो बैलेंस शीट वाला जो अप्रोच है ना वो मैंने तुमको सिखाया, समझा? yes sir yes sir And lastly, the closing statement. Only when this reason because of which in year 1, कौन सा year 1? कंपनी का नहीं, पहली बार जब ये हुआ था, only when this reason reverses, this number becomes 0.
but other numbers will continue to stay. Getting it? Yes, sir. So in my opinion, I have explained everything about DTL and every aspect about it. And this is where I would conclude and claim that I have explained you everything. So yeah. Any questions, let me know.